नमस्कार. कार्यक्रम सुरू व्हायला थोडा विलंब झाला त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करते. आणि लोकमान्य सेवा संघ आणि वैद्यकीय केंद्र, शरद साठे वैद्यकीय केंद्र यातर्फे मी आशा कुलकर्णी आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत करते. आपण सुरुवात दीपप्रज्वलनाने करणार आहोत. तमसो मा ज्योतिर्गमय म्हणत आपल्या जीवनातील जो भावनांचा किंवा विचारांचा अंधार आहे तो दूर करूया. दीपप्रज्वलन करण्यासाठी आज विशेष म्हणजे आपले विद्यमान अध्यक्ष मुकुंद चितळे आणि माजी अध्यक्षा डॉक्टर स्नेहलता देशमुख आपल्यात उपस्थित आहेत. त्यांच्यासाठी जोरदार एकदा टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया आपण. डॉक्टर स्नेहलता ताईंना विनंती करते, सुलभाताईंनी पाची मान्यवरांना दीपप्रज्वलनासाठी व्यासपीठाजवळ आदराने घेऊन यावं. श्री मुकुंद चितळे, उदय तारदाळकर आणि महादेव भिडे आणि आजच्या प्रमुख वक्त्या डॉक्टर शुभांगी पारकर. आजच्या आपल्या परिसंवादामध्ये डॉक्टर शुभांगी पारकर, डॉक्टर दिनेश नारूरकर, डॉक्टर आशिष देशपांडे आणि डॉक्टर विनीता पवार असे 4 मानसोपचार तज्ज्ञ आपल्याला लाभले आहेत. ते चौघेही इथे उपस्थित आहेत. त्यांच्यासाठी जोरदार एकदा टाळ्या वाजवून स्वागत. कैलासवासी शरद विनायक साठे वैद्यकीय केंद्राला देणगी देऊन उपकृत केलं आहे डॉक्टर गौतम सप्रे यांनी. त्यांचासुद्धा आज आपण सन्मान करणार आहोत. डॉक्टर गौतम सप्रे यांचे वडील डॉक्टर दिलीप सप्रे यांच्या इच्छेनुसार त्यांच्या मृत्यूपश्चात शरद विनायक साठे वैद्यकीय केंद्राला त्यांनी भरघोस देणगी दिली आहे. आणि त्यातून अशा प्रकारचे आपले प्रबोधनाचे अनेक कार्यक्रम आता आपल्याला करता येणार आहेत. हातांचा थोडासा व्यायाम करा. टाळ्या. सुलभाताईंना विनंती करते की आपण डॉक्टर सप्रेंचा आत्ता सन्मान करणार आहोत स्नेहलता ताईंच्या हस्ते. डॉक्टर सप्रेंना आपण फळांची परडी आणि संस्थेचं सन्मानचिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करणार आहोत. शरद विनायक साठे वैद्यकीय केंद्राच्या मानसी आपटे की ज्या कार्यवाह आहेत त्यांना मी स्टेजवरती निमंत्रित करते. त्यांनी केंद्राचा परिचय करून द्यायचा आहे. केंद्राचा परिचय करून दिल्यानंतर केंद्राच्या अध्यक्षा डॉक्टर सुलभा चिरमुले ह्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करतील. मानसी आपटे.
Welcome, everyone. It's my proud privilege to talk to you all in short a few past instances of how and when did this noble thought of starting a medical unit came into existence. Way back in 1976, Dr. P.G. Vartak, Dr. S.V. Tilak, and Shri R.G. Barve thought of getting all those social organizations together under one banner stating Federation of Social Institutions of Vile-Parle. And yes, they did it. It was inaugurated by Chief Medical Officer Dr. Jayantilal on 29/10/1967. Great seva of vaccination for small children began from then, and every Sunday from 9 to 10 a.m., which is on even to this day. Oral polio doses, triple vaccine, booster dose too were given from then on. The then renowned social worker, Mama Saheb Kulkarni, pioneer of anti-dowry movement, initiated and got the official permission from BMC to start this vaccination center at Lokmanya Seva Sangh. In the year 1972, BCG Center began, wherein all vaccinations till the age of 8 years was given in 1976. It turned out to be a full-fledged vaccination center for children from then. Dr. N.C. Joshi and Dr. Y.T. Oak gave medical guidance to parents via this center, age group 3 months to 5-year toddlers. They were given free medical checkup and guidance too. Not only in Mumbai, but also the outskirts of Mumbai area were visited. Panel of doctors in medical unit used to do proper survey and medical facilities were let out. Medical camps too were conducted at Agashi, Vasai, Shirvali, Kardi village, etc. In the year 1982, under the able guidance of Dr. Javadekar, collection and compilation of medical information of toddlers was done successfully. Measles, smallpox, chickenpox, eradication vaccination too was given. As per request from public, in the year 1973, Ayurvedic Center and in 1979, Homeopathic Center too were set up. Under the able guidance of Dr. Anand Joshi and Dr. S.U. Rayleigh. On 20th December 1988, this medical center was officially named as Sharad Vinayak Sathe Vaidyakiya Shakha. Sathe Foundation gave liberal donation of 1,50,000 to this center. Clap for that. In a well-organized function, this donation check was accepted by Justice Chandrasekhar Dharmadhikari. That means it was legal. Due to meticulous planning and working of Dr. Manik Chitnis, who with the help of Indian Cancer Society unit, cancer detection camps were organized 4 times a year, that is in March, June, September, and December. People from Churchgate to Virar and Ghatkopar visited these camps. The center was so popular, and Dr. Chitnis was a multifarious personality, very dedicated with good public rapport, could get lot of donation to this cancer detection camps. The same selfless service is carried forward till now without any hurdle. This center is never closed on any Sunday. We have to applaud Dr. N.K. Rao's selfless and untiring services rendered. Could you all clap for him, though he is not with us? Many doctors and volunteers have worked hard for this center. To name a few, Ayurvedacharya, Veni Madhav Shastri Joshi, Vaidyaraj, G.R. Navnikar, M.R. Navnikar, and Mama Saheb Kulkarni are a few to name who did this selfless service. Many helpful medical projects are carried out, providing wheelchairs, walkers, bedpans, etc. on nominal rent. Sri Vasudev Damodar Jog was pioneer in starting this. Blood donation camps were regularly organized since 1961 in the past.
Many dignitaries have visited these blood donation camps. To commemorate and celebrate the 61st birthday of Phula Deshpande, blood donation camp was organized. Renowned singer, music director Sudhir Phadke had visited this donation camp. Blood pressure testing is also done on nominal charges on every Sunday. Many innovative talks and camps are organized by eminent doctors regularly for Parlekars through this center. Of late, 6 years back, Dance for Better Health is another innovative project which has been started for the senior citizens, and it is revered too, to keep up good health of the senior citizens. Thank you for that. In short, glory of this center I have narrated in a nutshell, but years, 100 years, the Shakha has really worked under the banner of Lokmanya Seva Sangh. असं म्हणतात बुवा, मनुष्य का सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का साथ छूटा तो सभी पर मनुष्य बोझ बन जाता है. हम लोग तो बोझ नहीं बनेंगे ना. थैंक यू वन्स अगेन फॉर लिसनिंग. नमस्कार. आज 10 सप्टेंबर जगभर हा दिवस आत्महत्या प्रतिबंधक दिन म्हणून साजरा केला जातो. लोकमान्य सेवा संघाच्या वैद्यकीय शाखेतर्फे या दिवशी हितगुज हा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केला आहे. यावरूनच वैद्यकीय दृष्टीने हा विषय किती महत्त्वाचा आहे हे लक्षात येईल. रोज सकाळी वर्तमानपत्र उघडलं की त्यात कुठली ना कुठली आत्महत्येची बातमी समोर येतेच. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यापासून शहरी भागातील नोकरदार, व्यापारी, विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक अशा समाजातील सर्व घटकांचा यात समावेश दिसतो. आत्महत्या करणारी व्यक्ती जर प्रसिद्ध असेल तर मग विचारायलाच नको. सर्व चॅनलवर ब्रेकिंग न्यूज त्याच्यातून दिसते. क्वचितच एखाद्याची वेळ बरी असेल तर समुद्रात उडी मारणाऱ्याला जीवरक्षक, पोलीस अशा यंत्रणा वाचवण्यात यशस्वी ठरतात. पण असे प्रसंग अगदी तुरळकच. आणि ह्या बातम्या वाचून आपण खूप अस्वस्थ होतो. कधीकधी तर वरवर नॉर्मल आयुष्य जगणारी व्यक्ती अचानक इतकं टोकाचं पाऊल का उचलते हे आपल्याला समजतच नाही. आपल्या आत्महत्येने त्यांच्या कुटुंबावर काय परिणाम ओढवेल याची विचार न करता स्वतःचे आयुष्य व्यक्ती संपवते हे पाहून तर आपण चक्रावूनच जातो. यासाठी समाज म्हणून, व्यक्ती म्हणून, वैद्यक क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून आपण काय करू शकतो याचा विचार करण्यासाठी आज आपण सर्वजण इथे जमलो आहोत. आत्महत्या करण्याचे विचार मनात येतात तेव्हा इतर आजारांवर जसा सहजपणे आपण वैद्यकीय सल्ला घेतो तसा सल्ला घेणं सहसा टाळलं जातं. कारण आत्महत्या या गोष्टीला समाजात एक प्रकारचा स्टिग्मा आहे. असे विचार माणसाचा कमकुवतपणा दाखवतात अशी एक समजूत आहे आणि आपल्याला तशी भीती वाटत जाते. त्यामुळे नेहमीचे व्यवहार वरवर पार पडत पण अंतर्मनात प्रचंड वादळ आणि विचारांचे आवेग सोसत अशी व्यक्ती जगत राहते. कधीकधी परीक्षेतील अपयश 10वी-12वीसारख्या कोवळ्या वयातील मुले पचवू शकत नाहीत व स्वतःचे आयुष्य संपवतात आणि पाठी राहणारे पालक मात्र आपलं काय चुकलं हा विचार करत राहतात. आत्महत्यांचं हे वाढतं प्रमाण लक्षात घेऊनच समाज स्वास्थ्याच्या दृष्टीने त्याच्यावर प्रतिबंधक उपाय करण्याची गरज आहे. हे लक्षात घेऊन आजचा हा कार्यक्रम आपण आयोजित केला आहे. समाजातील सर्व घटकांना यात समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने NSS स्टुडंट, TISS स्टुडंट, मानसशास्त्राचे विद्यार्थी, सोशल सायन्स यांच्याशी संबंधित व्यक्तींना आम्ही आमंत्रित करून याच्यात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच या क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टर शुभांगी पारकर, डॉक्टर नारूरकर, डॉक्टर आशिष देशपांडे, डॉक्टर विनीता पवार हे सगळे नामवंत तज्ज्ञ आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. पार्ले येथील नामवंत सिनियर डॉक्टर दिलीप सप्रे यांच्या स्मरणार्थ डॉक्टर सप्रेंनी लोकमान्य सेवा संघाला दिलेल्या भरघोस देणगीतून आजचा आपला कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. याबद्दल सेवा संघातर्फे मी सप्रे कुटुंबियांचेही आभार मानते. या कार्यक्रमानंतर आपण जीवन अनमोल आहे आणि त्याचे विनाकारण उधळून संपवू नका असा संदेश समाजापर्यंत पोहोचवण्यात यशस्वी झालो आणि आयुष्यात कधीतरी अशी आत्महत्या करू इच्छिणाऱ्या एखाद्या जरी व्यक्तीचा आपण जीव वाचवू शकलो तरी आजचा कार्यक्रम सार्थकी लागला असं मी मानेन. धन्यवाद.
धन्यवाद सुलभाताई. आता आपण एक पथनाट्य बघणार आहोत. मावा संघटनेचं नाव आपण कदाचित ऐकलं असेल. मेन अगेन्स्ट व्हायलन्स अँड ॲब्यूज या संस्थेचे संस्थापक आहेत हरीश सदानी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी बसवलेलं हे नाटक आहे. तर आपण छोटंसं नाटुकलं म्हणा किंवा स्ट्रीट प्ले म्हणा आपण आता बघणार आहोत आणि मग नंतर पुढे आपल्या परिसंवादाच्या कार्यक्रमाला आपण वळणार आहोत. गेट सेट गो. हमारी चाय ले लो. अरे वॉलेट उधर ही रखा है, वो लेके जाओ. नहीं अरे ससुर जी पैर दबा दूं. बच्चों को रेडी करना है आपका. भाई ये कौन से ओलंपिक गेम की तैयारी हो रही है? ना ओलंपिक, ना ही कोई कॉमनवेल्थ और ना ही कोई एशियन गेम की. ये तैयारी तो चल रही है जिंदगी की दौड़ की. अरे जीतने पर कोई इनाम वगैरह मिलने वाला है क्या? जीतने पर क्या मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, हारने पर तौबा तौबा तौबा, शायद जिंदगी से ही. अरे छोड़ो ये सब, चलो तुम्हें मोहम्मद अली रोड के बढ़िया संजू बाबा चिकन खिलाता हूँ. एक मिनट, खाना पीना तो होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है? इतने सारे लोग, एक बच्चा, एक औरत और एक आदमी, ये सभी एक ही रेस में दौड़ रहे हैं. अरे भैया, सब कुछ सुनोगे तो देखोगे क्या, और जब तक देखोगे नहीं तो समझोगे क्या, और जब समझोगे तो ही तो बदलोगे. बिल्कुल. कहानियाँ हवा से नहीं निकलती, वो जिंदगियों से निकलती है, और इन्हीं अलग अलग जिंदगियों की झलक देती है हमें ये 3 कहानियाँ. नमस्कार, हम मैन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज़ मावा के कार्यकर्ता है, और आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर हम आप सभी के सामने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आत्महत्या या हत्या. पटक पटक के सर गिरा दे, नॉलेज की दीवार रटा मार, रटा मार. पटक पटक के सर गिरा दे, नॉलेज की दीवार रटा मार, रटा मार. 99%, well done. थैंक यू मैम. 85%, well done. But next time I want you to score 90%. Thank you. 93%, good job. थैंक यू मैम. 90%, well done सुरभि. थैंक यू. रोहित, ये क्या रिजल्ट आया तुम्हारा? 10वीं के बाद क्या करने का इरादा है? गणित में फेल हो गए हो, साइंस में तो जैसे तैसे पास हुए हो, और तुम्हारे पिताजी का सपना है कि बेटा इंजीनियर बनेगा. जिस तरह से तुम्हारे मार्क्स आए, उस हिसाब से तो तुम्हें कार्ल मार्क्स ही पढ़ना होगा. क्योंकि साइंस में तो तुम्हें एडमिशन मिलने से रहा, और फिर आर्ट्स पढ़कर करोगे क्या? करोगे क्या? करूँगा क्या? हाँ करूँगा ना, सपने पूरे करूँगा, लेकिन अपने नहीं, अपने पिताजी के. मार्क्स तो अच्छे ले आऊँगा, लेकिन अच्छे से क्या होगा? वो पड़ोस वाले अंकित से तो ज़्यादा ही लाना पड़ेगा, तभी तो अच्छा माना जाएगा. आर्ट्स तो पसंद है, लेकिन इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी. टीचर ने तो कहा है आर्ट्स करके तुम करोगे क्या? इससे तो अच्छा मैं अपनी जिंदगी को ही. तरीही मन उदास आहे. ना शांतता माझ्याशी बोलत, ना पिंपळ पान एकही डुलत. वारा आहे थबकलेला आणि पाणीही थबकलेलं. चंद्र आहे गंभीर आणि रात्रही संकोचलेली. मनी दुःख आहे, पण तरीही मन उदास आहे. ये देश जिसे हम गर्व से युवाओं का देश कहते हैं, वहाँ 2020 के एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि 12,523 विद्यार्थियों ने आत्महत्या करके अपनी जान गंवाई थी. यह तो कुछ भी नहीं, 2021 में इसकी संख्या बढ़कर 13,090 तक पहुंच गई. परीक्षा में फेल होना
एवं पढ़ाई को लेकर निरंतर परिवार से दबाव विद्यार्थियों की आत्महत्या का मुख्य कारण माना जाता है। इसके साथ ही साथ शिक्षा संस्थाओं में जाति, लिंग, धर्म, यौनिकता में की गई ये स्ट्रक्चरल भेदभाव को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऐसी सामाजिक भेदभाव विद्यार्थियों की पढ़ाई की प्रेशर के साथ मिलती है तब परिस्थिति और भी गंभीर हो जाती है। भाई बिल्कुल गंभीर तो बिल्कुल बना दिया है, ये तो बहुत डरावना है। इस तरीके का निरंतर दबाव एवं उम्मीद का बोझ एक ऐसे समाज में जहां हर कोई सिर्फ दौड़ रहा हो, वो केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, ये पढ़ाई वगैरह तो ठीक है, लेकिन उस रेस में तो एक औरत भी दौड़ रही थी ना, क्या वो भी स्कूल जा रही थी? स्कूल तो नहीं है, लेकिन बोझ तो यहाँ मेरे दोस्त दुगना है। मतलब आओ तुम्हें डिटेल में दिखाते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मेरी बेटी बहुत सुशील है, घर के सारे काम खुद ही कर लेती है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। मेरी बीवी बहुत आज्ञाकारी है, मेरे मर्जी के बगैर वो घर के बाहर जाती भी नहीं है। हमारी बहू तो बहुत ही केयरिंग है, खुद की तबीयत खराब है लेकिन हमें सुबह की चाय की देर में नहीं करती। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी ने मेरे पढ़ाई के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। अच्छी बेटी बन गई, अच्छी पत्नी बन गई, अच्छी बहू बन गई, अच्छी माँ बन गई। हाँ, ये सब करते करते अच्छी औरत भी बन ही गई, लेकिन खुद की व्यक्तिगत पहचान बनाने की इजाज़त इस पितृसत्ताक समाज ने मुझे ना दी। मुझे समाज द्वारा निर्धारित इन मापदंडों पर हर रोज़ खरा उतरना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने खुद की तो ये समाज मुझे बर्दाश्त ना कर पाएगा और इस अच्छी औरत का शरीर हिंसा का केंद्र बन जाएगा। इस हर रोज की जिल्लत से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान ही। भाई ये क्या हो रहा है? मैं तो एकदम कंफ्यूज हो चुका हूँ। बताते हैं भाई, बताते हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेट्स अनपैक दिस। क्या कहा था? सुशील बहुत अपना खुद का काम खुद कर लेती है। वो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार एक सर्वे हुआ था 2019 में। उसमें ये बताया गया, उस सर्वे का नाम था टाइम यूज सर्वे। सर्वे में ये बताया गया था कि महिलाएं अपने घर के कामों में 20% समय, घर के कामों में 20% समय और कैरिंग में लोगों कैरिंग में लगा देती है। महिलाएं 20% समय अपने घर के कामों में एवं लोगों की देखभाल में लगाती है, जो कि अनलेबर और इनविजिबल है, जो कि अनलेबर और इनविजिबल है। ओके, क्या कहा था? संस्कारी, सुशील, घर के सारे काम खुद करती है। 2019 में एनसीआरबी के सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का सर्वे किया गया था, जिसका नाम है टाइम यूज सर्वे, जिसके अनुसार ये पाया गया है कि महिलाएं अपने दिन की 19% समय घर के काम एवं लोगों की केयरिंग में लगा देती है। उसके विपरीत जबकि पुरुष केवल 3% समय अपने घर में दे पाते हैं। और क्या कहा था? आज्ञाकारी, घर के बाहर नहीं जाती। 4 राज्यों में 2019 से 21 में NFHS का सर्वे हुआ था। पता चला कि 60% लोग ये मानते हैं कि बीवी अगर घर के बाहर चली जाए तो उस पर हाथ उठाना जरूरी है। और क्या, नौकरी छोड़कर अच्छी माँ बन गई? आप लोग को तो नंबर ही समझ में आते हैं। लीजिए एक और नंबर, फैक्ट्स एंड फिगर्स एज दे से। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में महिलाओं का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन केवल 19% है।
यानी 100 श्रमिकों में से केवल 19 महिलाएं। 2018 के एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि हर दिन 63 महिलाओं ने आत्महत्या करके अपनी जान गंवाई थी। कभी सोचा है ऐसा क्यों? अरे सोचने के लिए तो दिया है ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, सोचो फिर। बिल्कुल, सोचने पर तो आपने बिल्कुल मजबूर कर दिया है, लेकिन आप ये सब जो कह रहे हैं उसके हिसाब से पुरुष होना तो एकदम बेस्ट ऑप्शन है, क्यों, है ना? लेकिन एक बात बताइए, उस दौड़ में तो पुरुष भी भाग रहे थे, आखिर माजरा क्या है? मेरे दोस्त, पुरुषों की दौड़ तो और भी रोमांचक है। इसमें केवल फिनिश लाइन तक पहुंचना ही काफी नहीं होता। तो फिर फिनिश लाइन पे सबसे पहले पहुंचना, अपने प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए पहुंचना। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? आओ कभी हवेली पे, दिखाते हैं। चलो। लाइट्स, कैमरा, एंड एक्शन। मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल। मर्द को दर्द नहीं होता। एक बाप की औलाद है ना, तो इधर ही रुकना। हमारे जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला लेना। बलि हमेशा का गुलाम साला। बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? एक बार काटे थे अपनी कलाई, इस बार तुम्हारी काटेंगे। लड़की की ना मेरी, उसकी हाँ है। जो डर गया समझो मर गया। भाई ये क्या चल रहा है? अरे छोटी बच्ची हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा? मर्द बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अरे मर्द बनने की ट्रेनिंग? मुझे तो लगा था कि अरे हाँ, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा पितृसत्तक समाज एक पुरुष से ये मांग करता है कि वो हमेशा निडर रहे, स्थिर रहे, परिवार की आर्थिक एवं शारीरिक रूप से रक्षा करे, डटा रहे, लगा रहे, सब कुछ करे, लेकिन हाँ, कभी कमजोर ना दिखे, भावुक ना होए, रोए वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ऐसा करना तो मर्दानगी के खिलाफ है ना। भाई बिल्कुल सही कहा। मेरे को अभी एक किस्सा याद आ रहा है। बचपन में आप लोग आमिर खान की पिक्चर देखी थी, तारे ज़मीन पर? मैंने भी देखी थी और मैं देखकर खूब रोया था। और जब मैं रो रहा था तब मेरे वहाँ दोस्त थे और वो वहाँ पे खड़े खड़े मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे वहाँ पर लोग। बिल्कुल मेरे दोस्त, एक ऐसा समाज जहाँ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आज़ादी ना हो, निडरता और वीरता का मुखौटा हर समय पहनना पड़े, ऐसे समाज में से मर्दानगी से जुड़ी हर एक रूढ़िवादी विचारों को हमें खारिज करना होगा। ऐसा माना गया है कि अपनी बातें अपने तक सीमित रखना और अकेलापन पुरुषों में डिप्रेशन और आत्महत्या का मुख्य कारण होता है। बचपन से ही हम लड़कों को जीतना, हासिल करना, नेवर टेक नो फॉर एन आंसर का पाठ पढ़ाया जाता है। अगर इस चित्र को बदलना है तो लड़कों को बचपन से ही जिंदगी के हर पहलू में ना सुनना और उसे स्वीकार करने की सीख देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक किसान कभी भी आत्महत्या केवल इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी फसल खराब हो चुकी है, इसलिए कि जब वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते तो ये समाज उसे एक अच्छा मर्द मानने से इनकार कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। इनकी बातों से हमें कुछ चीज़ तो बिल्कुल समझ में आई हैं। कौन कौन सी बातें ज़रा हम भी तो जाने। देखिए, पहली बात तो ये, अगर हमें आत्महत्या को समझना है तो हमें समाज में मौजूद सभी अव्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक समाज के रूप में जब हम आत्महत्या को देखते हैं तो उसे केवल एक व्यक्ति विशेष पर ना देखें। जैसे कि कहते हैं ना कि बुज़दिल थे, कमज़ोर थे, हार मान गए, ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, ऐसे शब्द हमें आत्महत्या की घटना के बाद सुनाई देते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने इर्द गिर्द देखें और एक समाज के रूप में इस पर चिंतन करें, रिफ्लेक्ट करें, और ऐसी व्यवस्थाएं जो कि असमान है, भेदभाव को बढ़ावा देती है, उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंकें और ऐसी मैकेनिज़्म का निर्माण किया जाए जहां पर सभी लोग अपनी मर्जी के साथ जी सके। और एक बात और बिना, जब परेशानी महसूस हो तो बिना हिचकिचाहट मदद मांग सके। देखिए आप सब, इतनी बात तो हमने समझ गई, अगर कुछ बात बच जाए तो आप लोग ऐड कर दीजिएगा। जवानी भी
धन्यवाद मावा टीम. बहुत बहुत शुक्रिया. बस हम चाहेंगे कि अपना 2 मिनट लेकर हमारे साथी अपना नाम बता दें. नाम बताइए. नमस्कार, माझं नाव भक्ती रमेश शिर्के. हॅलो, नमस्कार, माझं नाव भक्ती रमेश शिर्के. सुरभी माने. मोहम्मद फारूक. नमस्कार, मैं विशाल. डॉक्टर अमलानी. हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद शादाब. माई सेल्फ लबिका अंसारी. माई सेल्फ कृति शाह. माझं नाव संकेत. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वेद. बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये नाटक सुनने के लिए. मेरा नाम है रोहित. और मैं अभी जो ये नाटक जिन्होंने लिखा है और जिन्होंने हमें 4-5 दिन तक हमारे साथ जुड़कर हमारी रिहर्सल्स करवाई और हमारा एज एन डायरेक्टर कह सकते हैं आप, डायरेक्टर है हमारे नाटक के, तो अल्तमज भाई आप प्लीज. और अल्तमज भाई के साथ ये नाटक को लिखा है प्रवीण भाई ने, जो वहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं. Thank you for the opportunity. And my name is Altamash. I work with MAVA. I'm a program coordinator and a gender trainer with them. And I think writing this was very important क्योंकि मेरे ख्याल से कि बहुत important theme तो है ही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम पूरे नाटक में ये जो हमारा मेन फोकस था वो यही था, जो लास्ट में भी बोलते हैं कि सुसाइड को एक हमेशा हम एक इंडिविजुअल से ही जोड़ के देखते हैं, बट कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उसके इर्द गिर्द जो सिस्टम्स हैं, मेरे ख्याल से उसको चेंज करने की ज़रूरत है. अगर हम ये पूरा सुसाइड प्रिवेंशन की जब भी हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उस पर मेन फोकस होना चाहिए. तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने और प्रवीण ने ये नाटक लिखा था. थैंक यू सो मच. खूप खूप धन्यवाद मावा टीम. मी सातत्याने ह्या टीमच्या संपर्कात होते, हरीशच्यासुद्धा संपर्कात होते. हरीश सदानी पुण्याहून यायचे आहेत, मला वाटतं अजून ते पोचलेले नाही आहेत. आता स्टेजची अरेंजमेंट आपण करतो आहे, तोवर मी विद्यमान अध्यक्ष आपले मुकुंद चितळे यांना विनंती करते की स्नेहलताताईंचा आपण गौरव करणार आहोत. तर त्यांच्या हस्ते स्नेहलताताईंना आपण फळांची परडी देणार आहोत आणि त्यानंतर मान्यवरांना आपण सन्मानाने व्यासपीठावर घेऊन येणार आहोत. डॉक्टर स्नेहलता देशमुख तब्येतीचं कारण अजिबात न सांगता आपला उत्साह वाढवण्यासाठी थोड्या वेळासाठी का होईना आमच्या आग्रहाला मान देऊन आल्या, त्याबद्दल त्यांचं खूप खूप त्यांचे धन्यवाद. त्या थोडा वेळ बसणार आहेत, मला म्हणाल्या की मी पूर्ण वेळ कदाचित बसू नाही शकणार.